Good evening, good afternoon to everyone present here, and I thank you all for taking out your precious time for coming for the soft launch. And sorry we're a bit late, but I'll be giving you a brief about my organization, that's Ed Consult. Ed Consult is a very unique educational consultancy that provides a one-stop solution for all parents and students. Consider your career counseling, your stream selection, your study abroad guidance, specializing in Ivy League guidance, assistance of profile building, college application guidance, all that you can think of under one roof for your academic requirements. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया? How did I come up with this organization? So I was pursuing my master's in law at the University of Oxford, and while I was there, I realized there were vast knowledge gaps that existed in the global education systems, and students were not aware about it. And I think EdConsult is that gap, is there to bridge that gap between the students and the information that's lying in the world-class opportunities that the students can make aware about these things. And I think EdConsult will be there to handhold their hand with the entire academic requirements and their entire academic journey. What makes it different? I think EdConsult is different because I bring in my own expertise, my own experience of being a student and being admitted into one of the world's most prestigious university. And when it comes to understanding why students are not really applying to the dream schools or the best universities in the world, I think there is a lack of information and lack of awareness that is present. And EdConsult will bring about the entire education requirements so that parents are also aware about the changing career needs, changing educational requirements that are there. And we will make sure that the child dreams about the best college, and we give them the guidance to make them aware about all the opportunities that are available in the world. The vision of EdConsult is that it is a commitment to finding the best fit educational institute for the students. It could be in India and it could be outside as well. But I want the student to dream the highest so that at least they're sure about what makes a good career. You know, there are many students who take a specific stream, and once the stream is done and once they enter into college, they realize that this is not their place. This is not what they were meant to do. So I want to make sure this situation never arises and the student is aware and very confident about the choices they're making at a very young age. Because of the psychometric tests that have come into the picture, people are not aware that they could actually bring about the psychometric tests and see how their personality is, how their interests and strengths and weaknesses are, and then they could make a career choice. And along with that, a third perspective is important with respect to when you're choosing your career. Your parents could be saying something, your peers could be saying something, but maybe your forte is something else. So I think a career counsel is where I could pitch in my own experience and my own expertise with respect to the college application guidance. And I think within the coming years of operation, EdConsult is going to be a leading brand in the education industry, and with your support, I think we can make that happen. This is my opening remark for the EdConsult, and I think we can open up for questions now. ये जो आपने स्टार्ट किया है, ये लॉन्च कर रहे हो या इससे पहले रन कर रहे हैं आपका ये कंसल्ट? ये अभी लॉन्च करा है हमने, एंड दिस इज़ अ सॉफ्ट लॉन्च फॉर टुडे. आई थिंक जब मैं अपनी मास्टर्स करके आई, देयर वर मेनी, आप प्रैक्टिकली देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन अब आई है, बट मेरा एक्सपीरियंस इससे पहले भी रहा है. जब मैं मास्टर्स करके आई, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु अप्रोच्ड मी फॉर द सेम, एंड आई बिलीव दैट आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा नीड है. मैं एक बहुत अच्छा करियर यूके में भी कर सकती थी अपना ऑक्सफोर्ड के बाद, मेक अ स्टैंडिंग करियर इन द लीगल इंडस्ट्री, बट आई थिंक coming back was my passion, and I'm lucky that I could convert my passion into work and help students in the Tri-City itself. And obviously we're going to expand this pan-India so that every child can dream and can reach the world-class universities abroad. जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हो, इस तरह की इमिग्रेशन भी देती है, सेम उनका भी एक वर्क होता है, वो सारा कुछ जानकारी देते हैं. आप और उनमें फर्क क्या है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है. स्पेशली पंजाब एरिया में हमें इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखता है. EdConsult एक इमिग्रेशन फर्म नहीं है. दिस इज़ अ प्योर एजुकेशनल कंसल्टेंसी एंड करियर कंसल्टेंसी फर्म. We are not dealing as an agent. We want every child
to go to the university that's best for them. We are not looking at अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर जाइए, बाहर जाने का भी एक रीज़न होना चाहिए, एक अच्छा कोर्स होना चाहिए ताकि आपका जो करियर आगे बन रहा है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग करियर बने। उसके लिए ज़रूरी नहीं है बाहर जाओ, आप इंडिया में भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अवेल कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं उस चीज़ को आगे लाना चाहती हूँ। एंड अगर आप ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, इनके कोई एजेंट्स नहीं होते हैं। दीज आर प्योर टैलेंट बेस्ड एंड प्योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। एंड इनके बाद जो आपका करियर बनता है वो आपके लिए खुद एक आउटस्टैंडिंग, आपको खुद को पता चलता है कि एक इमिग्रेशन फर्म और एक प्योर एजुकेशन कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंस है। सो आई थिंक बीइंग द फाउंडर आई वांट टू ब्रिंग अबाउट दैट pure academics and pure extracurriculars and the right guidance can make you reach your dreams. And immigration छोड़ दीजिए, अगर इंडिया बेस्ट है तो इंडिया में रहिए, अगर एक अच्छा कॉलेज आपको यहाँ मिल रहा है वहाँ रहिए, बाहर है तो आप बाहर जाइए। वो हम उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हाँ जी, तो आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को अपने ड्रीम्स चेज करने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो रुकावट नहीं आनी चाहिए। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ बाहर देखते हैं, एम्पल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इंडिया एंड अब्रॉड, एंड पीपल आर नॉट अवेयर, क्योंकि वो अवेयरनेस ही नहीं है तो वो अप्लाई कैसे करेंगे। इनफैक्ट जब आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज आपका खुद का एप्लीकेशन देखिए, अगर आप अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं वो फिर भी आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी फाइनेंशियल एड के हिसाब से आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। कमिंग टू माई ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे भी लिए। इन द कमिंग मंथ्स मैं एक टेस्ट भी अनाउंस करूँगी जिसमें मैं स्कॉलरशिप डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स कैपेबिलिटी एंड उनका जो टैलेंट बाहर आता है, आई विल बी गिविंग आउट 2 फ्री प्रोग्राम्स टू द स्टूडेंट्स, और जो मेरे को लगता है कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट फाइनेंशियली वो उनका थोड़ा साउंड ना होने के कारण वो प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी उस चीज़ में हेल्प करेगी। बट एक स्कॉलरशिप के लिए आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक दिस इज़ वेयर अ करियर काउंसलर कम्स इनटू द पिक्चर। We will make sure the child has the best application that they put forward for the scholarship opportunities and they get it. तो ये एक प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे। कंसल्टेंसी का पार्ट है, उसमें कोई पर्टिकुलर कॉलेजेस है कि ओपन है कॉलेज? सो स्टूडेंट की कुछ अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी, मैं पर्टिकुलर यही कॉलेज में जाना चाहता हूं। सो डेफिनेटली आई थिंक स्टूडेंट एक बहुत कंफ्यूज माइंड से हमारे पास आता है, सब चाहे पेरेंट है चाहे स्टूडेंट है। तो हम किसी भी कॉलेज को लिमिट नहीं कर रहे कि हम सिर्फ इस कॉलेज में करवाते हैं, हम इस कॉलेज में करवाते हैं। हर एक कॉलेज का एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है। सिर्फ कॉलेजेस छोड़िए, हर एक कंट्री का एक स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कंट्री, कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स चाहिए। अगर मैं बोल दूँ कि मैं सिर्फ 5 कॉलेजेस में करवाती हूँ तो वो आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फिट नहीं करेगा। हमें हर चीज़ उनकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो आई थिंक ये बहुत एक कस्टमाइज्ड और एक सब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी हमारी तरफ से, जिसमें हम उनको हर तरह का कॉलेज गाइड करेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करो डिपेंडिंग ऑन देयर एकेडमिक्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो सर हमारे बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर एक फ़ी जो हम सबको गाइड कर देंगे। मेरा ग्रेड 8 to लेके ग्रेड 12 तक एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिनमें वो डायरेक्टली मेरे अंडर रहेंगे, जिनमें मैं उनको हैंड होल्ड करके इनकी क्या स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए, हर एक मंथ उनके क्या एकेडमिक गोल्स, उनकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्या उनकी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, ताकि हम उनको एक अंडर ग्रेजुएट तक जब वो पहुंचते हैं उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग दे पाए। तो एक अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम अलग रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट का अलग रहेगा। हाँ जी, डेफिनेटली सर। आई थिंक एक अफोर्डेबल बहुत एक ऐसा वर्ड है कि जब हम उनको क्वालिटी दे रहे हैं, ये आपको मैं कोट भी करती हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा 1 लाख का रहेगा फॉर 1 ईयर, बट इसमें भी हम उनको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देंगे एंड इसमें भी हम स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी देंगे। जो बच्चे हमें एक्चुअली में लगता है जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है बट उनको कुछ करना है लाइफ में, तब उनके लिए भी रहेंगे। तो आई थिंक एक अमाउंट को हम ये नहीं बोल सकते कि कोई कम है या ज़्यादा। आई थिंक जो उसके साथ क्वालिटी आ रही है वो हम जस्टिफाइड डेफिनेटली करके देंगे कि 1 ईयर में, एंड इनफैक्ट एवरी सेकेंड मंथ हमारा पेरेंट्स के साथ मीटअप होगा जिनमें हम उनको हर चीज़ के लिए सेटिस्फैक्शन देंगे कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है यहाँ से। सो आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी दैट आई एम इंटेंडिंग टू प्रोवाइड विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ट्राई सिटी एज ऑफ नाउ हियर।
So that's something what I look forward to make here. मैम जो रूरल एरियाज या छोटे शहरों में बैठे हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सर ऑनलाइन आजकल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. इनफैक्ट मेरे अभी भी क्लाइंट्स बहुत सारे पंजाब के रूरल एरियाज़ में हैं. I was born in Malot myself and my mom's from Muksa. So that's I truly understand your concern, and I think being online right now is the best way. In fact, some people don't, even if they're here, they don't want to come in the office and meet. Online, I have the best editors sitting in Bombay. I have one career counseling team sitting in Bangalore. So I think my entire team as of now is working online. So rural area is not a problem. In fact, we'll be definitely awareness करने के लिए भी हम उनके रूरल एरियाज भी हिट करेंगे इन द कमिंग मंथ्स, एंड वील मेक श्योर कि वो लोग भी पीछे ना रहे, स्पेशली इन द पंजाब एरिया. कंट्रीज कौन कौन से रहेंगे? सर जैसे मैंने आपको बोला, हर कंट्री ओपन है. मैं एक बच्चे को, अगर मेरे पास कोई आ रहा है, अगर उसको स्पेसिफिकली यूके जाना है तो मैं उसको यूके के लिए गाइड करूँगी. उसको इंडिया में रहना है तो मैं उसको इंडिया के लिए गाइड करूँगी. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, मैं एक कोई कंट्री पकड़ के किसी को गाइड नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे एक रियल गाइडेंस तभी होगी जब मैं उनको उनके हर ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि ये आपके लिए बेस्ट फिट रहेगा. अगर आपको सेटलमेंट रहना है तो कोई और कंट्री प्रेफर करेंगे. अगर आपको किसी लॉ में आगे जाना है तो एक यूके इज़ द बेस्ट कंट्री आई फील फॉर लीगल इंडस्ट्री. अगर आपको बिजनेस या फाइनेंस में जाना है देन स्टेट्स. रियल इस्टेट जाना है तो दुबई, बिकॉज रियल इस्टेट दुबई में बेस्ट है. तो एक कोई कंट्री नहीं है जिसके लिए हम उनको गाइड करते हैं. वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स है, उस हिसाब से हम उनको कंट्री बताएंगे. फीस पैटर्न भी बता रहे हैं आप 5%? नहीं सर, वही मैं आपको अभी बताती हूँ. सर मेंटरशिप का 1 लाख है फॉर 1 ईयर. आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी 1 लाख रहेगा. उसका भी 1 ईयर का कोर्स रहता है जिसमें हम आपको मेक श्योर करते हैं कि आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस, आपकी सारी स्कॉलरशिप्स, सब कुछ इंक्लूडेड हो. तो ये 1 ईयर का रहता है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं. मैं 1 लाख रुपया देता हूँ, मेरे को कनाडा में कोई मिल जाएगा कोर्स? सर ये चीज़ एक इमिग्रेशन पॉलिसी से है कि आपने मुझे बोल दिया आप मेरे को 1 लाख दे रहे हैं तो मैं आपको कनाडा पहुंचा दूँ. दिस इज़ नॉट व्हाट आई डू. मेरे पास एक बच्चा आएगा, मैं उसको देखूंगी कि उसकी क्या क्या एकेडमिक उसकी कैपेबिलिटी है, उसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, उसके लिए कनाडा बेस्ट रहेगा भी कि नहीं रहेगा. जस्ट उसको कनाडा जाना है वो मेरा पर्पस नहीं है. मेरा पर्पस है कि अगर एक बच्चे को एक्चुअली में लाइफ में ग्रो करना है तो हमें उसके लिए ये देखना है कि उसकी, आजकल लोगों को ये भी नहीं पता कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है. किसी को डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता, किसी को AI नहीं पता, किसी को, सब एक नॉन मेड मेड इनमें फंसे हुए हैं और वो बोलते हैं कि हमें बस एक कंट्री में भेज दो. ये मेरा एम नहीं है. मेरा एम एक हर एक बच्चे का कस्टमाइज्ड रिपोर्ट रहेगा कि इनको हम कहाँ भेजें और इनको इनसे क्या करवाएं. तो एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं हम रहेंगे. ये मेरा है विजन इस कंपनी का. क्लासेस भी कुछ होगी? हाँ जी, डेफिनेटली. इनफैक्ट आई बी कमिंग अप विद अ वर्कशॉप वेरी सून विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली CV building and your leadership program. I think when you inculcate leadership program, it's very important for kids to feel confident. And you can only become a leader when you're confident within yourself. So I think that has to start with a very young age. I started with my public speaking when I was very young. So I think that really helped me and pushed me to do things in life which I wouldn't have been able to do. So I think it's very important to get the students out of their comfort zone and make them aware about. So I'll definitely be bringing the workshops and seminars, leadership, CV building, also any extracurricular activities that are going to be in place. So yes, sir. ऑनलाइन की फैसिलिटी? Definitely, sir. Definitely. Today is the world of everybody is online these days, and people who can come in the office, we'll also be conducting offline seminars and online seminars. Online seminars, I'll have the maximum reach, as sir also said, what about rural areas, and that fee would be very minimum. So I think that's my way of reaching as many people as I can with respect to these workshops. यहाँ के जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं खास करके, उन्होंने ऐसे कंसल्टेंट अपने पास परमानेंट रखा हुआ है, हायर किया हुआ, सेम वही काम करते हैं. आप उनको कैसे कम्पीट करोगे? स्टूडेंट तो उनके पास है, Sir, ऑलरेडी आप जैसा रखा हुआ है. डेफिनेटली सर. सर मैं फिर से इस चीज़ को रीइटरेट करूँगी. When I was giving my masters, मैं अपना एप्लीकेशन सब कर रही थी. I could not find a good counselor here. I think I'm the only one in my college that ever went to Oxford University. So I think how I am comparing with the school counselors is that I want my child to dream high and being able to compare that they're also
able to reach these universities in the end. So there is no comparison, sir. They're doing their best that they can. I think I'm coming as an independent counselor out of the schools and helping them reach where I think they can reach, giving my own expertise and my own experience as a student. आपकी टीम में स्टाफ है सफिशिएंट जो आप वर्क कर रहे हो इस चीज़ का? Definitely, sir. Sir, staff proper हमारे पास है. In fact, we'll be getting हमारे पास जो career counselors हैं वो हर एक field के लिए specific है. पर एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगी, Ed Consult by Ashpika is there because parents are coming to meet me. No matter how much staff I keep, all of them will be under my eye and it's going to be one-on-one consultation with me. So I think that's the hallmark of this organization, that it's not going to be handed over to various career counselors which are present. I think I'm going to be giving my own experience and my consultation in this field. ये सवाल ये कि Ed अस्पताल की क्या सभी Consult, को इंडिया में कैंडिडेट और भी है इस तरह की, मतलब आपसे पहले भी कोई करियर के लिए इस तरह गाइडेंस देता था आपसे पहले? Sir, definitely there are career counselors. I would not say there are not career counselors present in जैसे the... exactly आप करियर I don't think so. I think someone who's come from that university, giving that own experience, I think very few people even come back to do what I'm trying to do here. तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है. हाँ जी सर, I've always been, I think entrepreneurship मेरा एक मेरे को बहुत इसने ड्राइव करा है, and there will be more things coming up and definitely आप उसका पार्ट रहेंगे. बट ये एक आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो ट्राई सिटी में हम लाए हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू एक्सपैंड दिस पैन इंडिया. ऐसा इंस्टीट्यूशन जब खोलते हो, हाँ खास जी. करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पंजाब सरकार से आपका कोई टाई अप है, कल को कोई प्रॉब्लम आती है या स्टूडेंट के साथ आती है, वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? सर प्रॉब्लम आती है आप किस चीज़ की आपका क्वेश्चन जो टाई अप्स की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट से अप्रूव है ये? हाँ जी सर, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ. इसमें कोई अगर किसी को भी, एवरीबडी इन केस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, all your legal remedies are open. So I think there is this organization is completely legally requirement, सब चीज़ें इसकी approved हैं, तो as such उसमें कोई problem नहीं आएगी. अच्छा, एक चीज़ सवाल और पूछना था हाँ कि जी. अगर इन फ्यूचर में किसी बच्चे ने आपसे गाइडेंस ली A to Z, फर्ज कीजिए कि उसने +2 से आपसे गाइडेंस ली 1 साल तक की, गाइडेंस लेने के बाद वो सेटिस्फाइड होता है 1 साल बाद, फिर उस केस में आपकी तरफ से क्या और वो बच्चा क्या कर सकता है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. आई थिंक सेटिस्फैक्शन इज अ वर्ड वेयर आई विल मेक श्योर फ्रॉम माई एंड दैट आई एम नॉट गोना गिव देम 1 year टू सी कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं. द हॉलमार्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट एवरी मंथ देयर इज गोना बी अ चेकअप रिपोर्ट which means you're going to see, are they actually growing, are they actually satisfied with what we're providing them. This is not going to be a one time thing that they're going to come in and 1 year बाद वो मुझे बताएंगे कि हम इससे वो नहीं है, क्योंकि इसमें इतना इंटरेक्शन रहेगा स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ कि इस सिचुएशन पे हम पहुंचेंगे नहीं कि वो एट द एंड मेरे को बोले कि हम सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर एक बच्चे को उसकी जो उसकी प्योर पोटेंशियल है उस पर रीच करवा पाए. मैंने क्लास कॉल है कि हाँ जी. के लिए फर्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई बच्चा आता है उसकी फीस वगैरह होगी आपके पास फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं? No sir, definitely there's no fees for that. In fact, I think that is the moment of trust, and I would want the parents to trust me before they can actually get into the program, and that is completely free consultation. And I think I would encourage all parents and all students to come up. In fact, if your kids also want to go, I will be happily available for them and would love to have a counseling session, sir.